Your goal is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we are going to study about all these topic, okay? Like that, more about salt. Firstly we will discuss that one, and then classification of salts. In this we will classify these salts in three groups: classification based on chemical formula, based on pH values, and based on family of salts. And then we will discuss pH of salts. Okay, let's start now. Yes student, today lecture is lecture number 7 of class 10th, chapter 2, acids, bases and salts. Okay, so we are going to study about more about salts. तो हम कुछ salts के बारे में जानेंगे. Okay student, we have learnt in the chemical characteristics of acids and bases that an acid dissolved in water react with a base also dissolved in water to form salt and water as the product. Okay, जब कोई भी acid dissolve होता है in water react with a base also dissolved in water to form salt, वो salt देता है और product देता है as a water. Okay, since the salt form is generally neutral in nature, तो जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है इन नेचर. ये हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. सो द रिएक्शन और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जैसे एसिड प्लस बेस गिव राइज टू आफ्टर रिएक्टिंग सॉल्ट प्लस वाटर. और इसका बेस्ट एग्जांपल एक HCl और NaOH का दिया था, जिसमें आफ्टर रिएक्टिंग इट गिव्स salt as a sodium chloride and water molecule. Next best example of neutralization reaction is HNO3 when react with KOH give rise to KCl plus water. So we have already discussed all these chemical properties of salts. Let us discuss now. Salts are basically ionic compounds made up of positively charged ions. That is called cation. जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो क्या होते हैं, कैटायंस, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन एनायंस. ओके, इन द सॉलिड स्टेट में दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब यहाँ पे एक वर्ड आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये फोर्स दो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच लगता है. ठीक है, जो इसमें जो लाइक चार्ज होगा वो रिपेल करेगा ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो किन्हीं दो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट को हेल्ड करता है टुगेदर. ओके, बांधे रखता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन द सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. जब सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, दीज आयंस, अभी सॉल्ट किससे बनता है, आयनिक कंपाउंड है, एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा. तो ये आयन क्या होते हैं, रिएडली बहुत जल्दी गेट सेपरेटेड. ओके, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं जैसे इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सम कॉमनली यूज्ड salts along with their chemical formula is, now I will tell you some salts with their chemical formula. Okay, let us discuss now. This is the table of some commonly used salts and their chemical formula. Okay, so student, these are the salt. One by one we will discuss all these salt. These are made up of positively charged, that is called cation, and negatively charged ion, that is called anion. Okay, so first one salt is sodium nitrate. Its chemical formula is sodium NaNO3, cation Na plus and anion NO3 minus. नाइट्रेट होता है ये. ठीक है, और ये सोडियम कैटायन. सेकेंड सोडियम क्लोराइड. वी ऑल नो formula of sodium chloride is NaCl, positive ion is Na plus, negative ion is chloride ion. Okay, Cl minus. Third one is copper sulfate. Chemical formula CuSO4, positive ion Cu2 plus, copper
Cu+ फॉर्म में भी रहता है और Cu2+ में भी रहता है, ठीक है। नेगेटिव आयन इज SO4 2-, ये सल्फेट आयन है। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 is chemical formula, Zn2+ is cation and its anion is CO3 2-, that is carbonate ion, okay. Calcium chloride CaCl2, positive ion Ca2+ and negative chloride ion Cl-। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 होगा और Mg2+ का कैटायन पार्ट है और इट्स नेगेटिव पार्ट इज CO3 2-, that is carbonate ion. Sodium carbonate Na2CO3 2Na+ cation CO3 2- anion, okay. Next, sodium sulfate Na2SO4, positive ion is Na+ and anion will be SO4 2- sulfate. Aluminum chloride AlCl3, Al3+ is कैटायन एंड Cl- इज एनायन। तो ये कैसे बन रहे हैं कैटायन एनायन इसके पार्ट, देखिए यहाँ पर जैसे कोई एक डिस्कस करते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे सोडियम कितना है, ओवरऑल चार्ज इसका क्या होगा, 0 होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, जितने चार्ज हमारा कैटायन का है उतना ही चार्ज हमारा एनायन का होना चाहिए, तब ये हमारा स्टेबल होगा कोई भी सॉल्ट। जैसे Na2SO4 को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम हैं, मीन्स Na+, ये एक चार्ज प्लस का एक सोडियम के लिए है, यहाँ पे 2 हैं तो 2Na+ हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज 2+ हो गया सल्फेट का। अब हमें इसे कैंसिल आउट करने के लिए -2 चार्ज चाहिए, इट मीन्स सल्फेट जो होता है वो 2- चार्ज कैरी करता है, तो ओवरऑल क्या हो गया 0 +2 -2। ऐसे किसी भी सॉल्ट को आप देखिए तो वो ओवरऑल टोटल चार्ज कितना देगा 0, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 होल थ्राइस होता है ये, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, 2 एटम हैं, तो एक एल्युमिनियम एटम कैरी करता है 3+ चार्ज, ठीक है। तो 2 पे कितना हो गया, 2 3 6+ चार्ज। अब सल्फेट पे, यहाँ पे सल्फेट कितने होंगे, 2, क्योंकि क्रॉस हो जाता है ना, ये फॉर्मूला कैसे प्रोड्यूस हुआ, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SO4 2- है, तो कितने हैं सल्फेट के यहाँ पर मॉलिक्यूल 3 हैं, ओके। तो 3 2 जा 6, तो -6 है टोटल, तो +6 -6 ओवरऑल कितना हो गया 0, डेट विल बी फॉर्म Al2 होल थ्राइस ऑफ SO4, ओके। सिमिलरली बेरियम नाइट्रेट देखिए, BaNO3 का होल ट्वाइस होता है, Ba2+ 2NO3-, ओके, नाइट्रेट ग्रुप है ये, बेरियम कैटायन है। लेड सल्फेट PbSO4 और लेड Pb2+ फॉर्म में कैटायन होगा और SO4 2- हमारा एनायन यहाँ पर, ठीक है। सो ओवरऑल वी हैव ऑब्जर्व दैट salts are made up of cations and anions and they release the same when dissolved in water। जैसे फॉर एग्जांपल लेड सल्फेट को हमने डिजॉल्व किया वाटर में, तो ये किन आयन से मिलकर बना है, Pb2+ SO4 2-, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैटायन और एनायन रिलीज़ करेगा जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा। तो आपको ये सारे सॉल्ट्स, इनके केमिकल फॉर्मूले, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। यस स्टूडेंट, जस्ट वी हैव डिस्कस सम कॉमनली यूज सॉल्ट्स along with their chemical formulae, okay. I hope you all are understand very well. Next come to classification of salts. First one classification is based on chemical formula. तो chemical formula के बेस पर हम इनको डिस्कस करते हैं। On the basis of chemical formula, salts are classified into 3 types. First one is normal salt. Now we will discuss briefly classification of salts. So here first one is normal salt. A normal salt is the one which does not contain any ionizable hydrogen atom or hydroxyl group. नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये किसको बताता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसकी प्रॉपर्टी बताता है, बेसिस की, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल NaCl, KCl
Na, NO3, K2SO4, etc. All these are example of normal salt because these salt does not contain any hydrogen and hydroxyl group. Okay, are normal salt. Let's see in chemical reaction. Here sodium hydroxide reacting with HCl. After reacting give rise to sodium chloride plus water. तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड बना that is a normal salt. Okay. Next, its second type is एसिडिक सॉल्ट. पहला हमने नॉर्मल सॉल्ट पढ़ा, सेकंड है एसिडिक सॉल्ट. अभी एसिडिक से पता चल रहा है इट मीन इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा. ठीक है. एन एसिडिक सॉल्ट स्टिल कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4. तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ओके. अब इसको केमिकल रिएक्शन फॉर्म में देखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड. आफ्टर रिएक्टिंग गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो इट मीन्स जो यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ ये क्या है, एसिड सॉल्ट. ओके. और वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड हियर. नेक्स्ट कम्स बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? ए बेसिक सॉल्ट स्टिल कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एसिडिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम थे और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे. फॉर एग्जाम्पल बेसिक लेड नाइट्रेट PbOH NO3. तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये मैंने पहले से इंडिकेट किया है यहाँ पर. और बेसिक लेड क्लोराइड यहाँ पे PbOHCl. तो यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट मीन्स बेसिक सॉल्ट. नेक्स्ट बेसिक कैल्शियम क्लोराइड CaOHCl. इन केमिकल फॉर्म इट कैन बी formed as calcium hydroxide reacting with here HCl. It is a strong acid. After reacting it will give basic salt as basic calcium chloride plus water molecule. तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा. नेक्स्ट कम डबल सॉल्ट. कुछ डबल सॉल्ट भी होते हैं जो टू टाइप्स के दो नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करके बनते हैं. दीज सॉल्ट्स एज द नेम सजेस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट नॉर्मल सॉल्ट. देखिए कि ये जो सॉल्ट हैं डबल सॉल्ट ये प्रिपेयर किए जाते हैं बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन. मतलब इक्विमोल एक समान मात्रा में दोनों प्रेजेंट होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पोटास एलम जिसको हम फिटकरी बोलते हैं हिंदी में. ये हम छोटी क्लासेस में भी एज अ जनरल नॉलेज हमें पता होता है. पोटास एलम जो होता है वो फिटकरी को बोला जाता है. ए वेल नोन डबल सॉल्ट, इसीलिए इसको वेल नोन डबल सॉल्ट भी कहा है. कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट. दीज आर बोथ नॉर्मल सॉल्ट जिससे मिलकर बना है. किससे? पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट. तो इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्विमोलर मतलब एक समान मात्रा में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. जितनी इसकी अमाउंट होगी उतनी ही एल्युमिनियम सल्फेट भी होगा. इक्विमोल होगा, मोलर होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसको. इट इज़ मेड अप ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट अमोनियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट. ठीक है. दीज आर द 6 crystal form of water. And potash alum, it is made up of potassium sulfate K2SO4 and aluminum sulfate Al2 whole thrice of SO4. And here 24, it contains 24 water crystal. Okay. Next classification is based on pH values. Salts, as we know, are formed by the reaction between acids and bases. Depending upon the nature of acids and bases or upon the pH values, the salt solution are of 3 types. Okay. कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन? और बेस्ड ऑन pH वैल्यू 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन. नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल, इट मीन्स इसकी pH वैल्यू कितनी होगी? 7. ओके, लेट अस डिस्कस. सॉल्ट solution of strong acid and strong bases are neutral and have pH equals to 7. They do not change the color of litmus solution. For example, NaCl, KCl, ये सोडियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा. डैट मीन्स जो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे उनका pH 7 होता है. इट मीन्स जो उसमें प्रेजेंट उन सॉल्ट सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. अगर एक वीक एक स्ट्रॉन्ग होगा
तो प्रीफेयर हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले को दिया जाता है, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। अब ये NaCl है, तो इसका जो Na पार्ट है वो कहाँ से आया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से, क्योंकि NaOH से आया होगा, ये समझिए मैं क्या बता रही हूँ, Na, तो ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस से आया और Cl वाला HCl से मिला, तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है ये, ठीक है। ऐसे ही इसका पता लगाते हैं हम, KCl में ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है KOH और ये Cl पार्ट HCl से, तो डैट मीन्स दिस इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। एंड सोडियम नाइट्रेट में सोडियम कौन से बेस से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से, डैट इज़ NaOH, तो यहाँ से Na पार्ट ये वाला NaOH से मिला और NO3 ये आएगा नाइट्रिक एसिड से, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो ये HNO3 से मिला ये वाला पार्ट। तो इट मीन्स जितने भी सॉल्ट एग्जाम्पल में लिए गए हैं इन ये किससे मिलकर बने हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है। सोडियम सल्फेट ये वाला पार्ट सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ जाएगा और सल्फेट जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड से, ये वाला पार्ट H2SO4 से मिला, तो इट मीन्स ये एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका सल्फेट आयन जो इसमें प्रेजेंट है इस सॉल्ट में वो सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, ठीक है, और ये NaOH से। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं। ऐसे एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट कम एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस। तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस किसको देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर ऑफ एसिडिक नेचर, तो इसीलिए इसको कहा गया एसिडिक नेचर। प्रेफरेंस किसको दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड को। अब कोई एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है तो स्ट्रॉन्ग की पावर ज़्यादा होगी वहाँ पर, ठीक है, उस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड हैव pH लेस देन 7, तो जब एसिडिक है तो उसकी pH वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 7, ओके। दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पेपर टू रेड, और ये एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पेपर किस में चेंज हो जाता है, रेड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, बोथ दीज आर एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। Let us discuss these example. Here ammonium sulfate is formed by strong acid that is H2SO4, ये सल्फेट आयन कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से, एंड दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। ये अमोनिया वाला पार्ट कहाँ से आया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, इट मीन्स इट इज़ ए एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, इट इज़ फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस NH4OH, तो ये NH4 अमोनिया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारा वीक बेस है, और HCl क्लोराइड आयन कहाँ से आया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से, डेट सेड, ओके। आई होप you are understand this. Next come next basic salt solution. Salt solution of strong bases and weak acid. तो here we will give preference strong bases. That means जो ये solution होगा basic nature का होगा and have pH more than 7. तो जब basic salt solution है तो उसका pH value क्या होगी, more than 7. They change the color of red litmus solution paper to blue. और जो हमारे बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, बेस क्या करते हैं, जो रेड लिटमस होते हैं उनके चाहे वो रेड लिटमस सॉल्यूशन या पेपर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करते हैं सोडियम कार्बोनेट, so here this one part is come from NaOH and this carbonate group is from carbonic acid, ठीक है। तो ये हमारा वीक एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये वीक एसिड। ऐसे K3PO4 में अब K3 ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा, KOH पोटेशियम के यहाँ से आया स्ट्रॉन्ग बेस से,
और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से मिलेगा हमें, फॉस्फोरिक एसिड से, वो था H3P, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है H3PO4। तो ये जो ये वाला पार्ट है PO4, ये कहाँ से आएगा हमारा, वीक एसिड से, ठीक है। तो ओवरऑल वी हैव ऑब्जर्व हेयर ए न्यूट्रल salt solution has pH equals to 7 and next acidic salt solution has pH less than 7 and a basic salt solution has pH greater than 7. I hope you are understand the classification based on pH values. Next one classification is based on family of salts. Let us discuss. The salts have also been classified into different families बेस्ड ऑन द कॉमन आयन प्रेजेंट। जो सॉल्ट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट फैमिलीज। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन आयन प्रेजेंट बिटवीन दैम। ओके, सो हेयर फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट सच salts such as sodium chloride, sodium nitrate, sodium sulfate belong to sodium family known as sodium salts because all of them have कॉमन Na+ आयन। देखिए इसमें भी Na+ है, इसमें भी Na+ प्रेजेंट है और इसमें भी Na+ है, ठीक है, 2Na+। तो इट मीन्स इन तीनों सॉल्ट्स में क्या है कॉमन आयन, Na+ आयन, दैट इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट्स। ओके, सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट सॉल्ट्स लाइक अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली नोन एज क्लोराइड सॉल्ट्स सिंस दे हैव कॉमन क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम क्लोराइड में भी क्लोराइड आयन होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड में भी, तो दैट इज नोन एज क्लोराइड सॉल्ट्स। तो इनकी फैमिली क्या होगी, क्लोराइड सॉल्ट फैमिली कहलाएगी और इनकी फैमिली सोडियम सॉल्ट्स है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सम कॉमन फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। ओके, हेयर आई हैव टेकन सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली एंड पोटेशियम फैमिली। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज salt families along with their chemical formula. Okay, so in case of sulfate family, first one potassium sulfate, K2SO4 is the chemical formula. Second one here ammonium sulfate NH4SO4 is a chemical formula. Magnesium sulfate MgSO4. Next calcium sulfate CaSO4. In sulfate family there was sulfate as a common group, okay, in all these salts, and in case of nitrate family there will be nitrate group as a common. So here first one sodium nitrate NaNO3, next one strontium nitrate SrNO3, zinc nitrate ZnNO3, cadmium nitrate CdNO3। तो यहाँ पर नाइट्रेट फैमिली में क्या है, कॉमन ग्रुप नाइट्रेट NO3, ठीक है, इन ईच केस, एंड यहाँ पर सल्फेट में सल्फेट ग्रुप था। नेक्स्ट कम पोटेशियम फैमिली, तो यहाँ पर पोटेशियम कैटायन प्रेजेंट होगा सब में। तो पहला इसका एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो जितने भी पॉसिबल सॉल्ट्स हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं इसमें, ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट मेरे सारे लेक्चर केमिस्ट्री के ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वहाँ से जो केमिस्ट्री आती है वो जनरल पूछी जाती है मोस्टली। कीप नोट डाउन ऑल द कंटेंट, ओके, एंड स्टडी वेल। एंड स्टूडेंट डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जितना ज़्यादा हो इसे फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए, और आपकी जो भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ओके, नाउ यू हैव टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू क्लास।